Thank you everyone for joining. Hare Krishna, all glories to the assembled devotees. Please accept my humble obeisances. Jai Shri Prabhupada. I'll just start with some prayers. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapad Kamlam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Satam Sajivam Sadhvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishvanu Devi Pranamami Hari Priye Vanchakaltarubhyascha Kripa Sindhu Eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nishishya Shunyavadi Paschatya Desha Tarane Mukam Karoti Vachalam Vekilim Yatkripatamam Vande Shri Guru Taranam Paramananda Madhavam Shri Krishna Chaitanya Ishwaram Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Hare Krishna. Thank you everyone for joining. Okay, so we will, I'll put this verse up. So just for Sarita Mataji's benefit, Mataji, this verse, we are actually on chapter 18 of Bhagavad Gita, which is the last chapter. But as Krishna says, do not fear. We will start again with Bhagavad Gita at some point. And also, wherever you pick up Bhagavad Gita, it's fully nectarian. It's it's completely full of knowledge. And it's like rasgulla. Rasgulla को जहाँ से भी खाओ वो मीठा ही लगेगा. ऐसे ही भगवत गीता को जहाँ से भी पढ़ोगे मीठा ही लगेगी, अच्छा ही लगेगी, समझ आएगी. So don't worry. And the verse that we are at is actually the essence of all Bhagavad Gita. Not only all Bhagavad Gita, it's the essence of all Vedic knowledge. It's the conclusion. It's the summum bonum of all knowledge that there is. And this tells us this is everything. This verse is everything. If there is one verse you had to memorize in Bhagavad Gita, then this is the verse. If you want to open your account of learning Bhagavad Gita verses, then this is where you should start. So you have joined us at a very, very opportune moment, because this verse is very important. Actually, it not only teaches us our etiquette towards Krishna, but also our etiquette towards devotees, towards Guru, our conduct with them, our faith, our etiquette towards reading scriptures, towards Harinam, everything. So this verse is actually everything. अगर कोई इसको अपने अंदर बिठा लेना, तो उसका हरिनाम भी अच्छे से होगा, स्क्रिप्चर्स भी वो अच्छे से रीड कर पाएगा, डिवोटी संघा भी उसका इम्प्रूव हो जाएगा, उसका फेथ इम्प्रूव हो जाएगा, and full perfection in this life is guaranteed. इसलिए please adopt this one verse into your life. Okay, and I know it's been a few weeks since we did the first two lines of this verse, तो थोड़ा सा recap करते हैं, ठीक है, थोड़ा पीछे जाते हैं to understand it, ठीक है, और एक दो बार ये वर्स भी रिसाइट करते हैं. लेट्स रिसाइट इट. सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज. मामेकं शरणं व्रज. अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा. Anybody would like to recite from memory? I know that some of you had memorized it. Yes, Mataji. Yes, Mataji. Please take turns and go ahead. Sarvadharman parityajya mam ekam sharanam vraja.
अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। Very bold. Bold. Wonderful. Very perfect recitation, perfect um, illustration and everything, Mataji. Very wonderful. Okay. Yes. Namita Mataji, then Rekha Mataji. Mataji, I haven't memorized completely yet, Okay. but I'll do it for Next sure. time. Okay. Rekha Mataji, do you remember? Yes, I think so. Try it. It's okay. Just try. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो अमोक्षयास्मि मा शुचा। मोक्षायिष्यामि मा शुचा। परफेक्ट माताजी, याद थी आपको? आपको Okay. बिल्कुल याद थी। बस 2-3 बार बोल लो, दिन में हो जाएगी। बस आज 1-2 बार और बोल लो, that's it. But you remember. Okay. Anybody else? Knows? Does I know my dad has joined, and if mama is there, then she could probably recite if she knows. If not, please memorize and recite next time. Okay. So इसके वर्स के डीप में जाते हैं। इस वर्स में 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहली लाइन है सर्व धर्मान परित्यजा। कृष्णा बोल रहे हैं सभी धर्मों का त्याग कर दो। ठीक है। सर्व धर्मान परित्यजा माम एकम शरणम रजा। सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण में आओ। माम एकम, ओनली मेरी अकेले की शरण में आओ। ठीक है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मुक्त कर दूंगा। डू नॉट फियर। मा शुचा मतलब डू नॉट फियर। ठीक है। सारे धर्मों को छोड़ के सिर्फ एक मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। डू नॉट फियर। दैट्स इट्स एज सिंपल एज दैट। बहुत ही सिंपल है। अब इसको डीप में जाते हैं। सर्व धर्मान परित्यजा का क्या मतलब है? हमने ये लिया था, पर मैं एक बार जस्ट रिकैप कर रही हूँ। तो हमने धर्म वर्ड को अच्छे से डाइसेक्ट किया था कि धर्म का मतलब क्या है। धर्म डज नॉट मीन कि गिव अप योर क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम धर्म या हिंदू धर्म। दैट्स नॉट द धर्म कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट हियर। धर्म की डेफिनेशन इज नॉट रिलीजन। धर्म की एक डेफिनेशन रिलीजन हो सकती है, पर यहाँ पे जो डेफिनेशन है धर्म की, वो है कि आपने जो अपने धर्म बनाए हुए हैं, आपने जो अपना सो कॉल्ड पर्पसेस बनाए हुए हैं कि इन दिस लाइफ माय पर्पस इज टू जस्ट डू दिस, लाइक माय धर्म इज माय म्यूजिक, माय धर्म इज माय आर्ट। या फिर एक तो ये अंडरस्टैंडिंग है धर्म की, जो आपने अपने सो कॉल्ड पर्पसेस बनाए हुए हैं कि क्रिकेट ही मेरा धर्म है, या फिर सचिन ही मेरा भगवान है, या फिर मूवीज बनाना ही मेरा धर्म है, या ट्रैवल करना ही मेरा धर्म। जो भी आपने ऐसे धर्म बनाए हुए हैं, सो कॉल्ड पर्पसेस आपने अपनी लाइफ को असाइन किए हुए हैं, वो एक्चुअली आपका धर्म नहीं है। हमारे स्क्रिप्चर्स बताते हैं दैट आवर धर्म इज आवर इटर्नल, आवर सनातन धर्म इज आवर इटर्नल रिलीजन, और आवर सनातन धर्म इज टू बी द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। जीव का स्वरूप है, उसका धर्म है कृष्णा का नित्य दास होना। ये हमारा धर्म है। उसके अलावा कृष्णा कह रहे हैं बाकी सब धर्मों को छोड़ दो। उसके अलावा जो भी आपने अपनी लाइफ को पर्पस दिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म इस लाइफ में असाइन किए हुए अपने आप को पर्पस, वो छोड़ दो। ठीक है। दूसरा धर्म की यहाँ पे डेफिनेशन है जो आपने अपने माइंडसेट या ओपिनियंस बनाई हुई हैं। कई बार लोग ना ऐसे क्लास में आते हैं या हमें मिलते हैं, वो बोलते हैं पर मेरा मानना ये है कि भगवान ये चाहते हैं हमसे, मेरा मानना ये है कि हमें लाइफ में ये करना है, मेरा मानना है कि हमें अपनी लाइफ ऐसे जीनी चाहिए। लेकिन आपके मानने से कुछ नहीं होता, because who are you to know anything? That your belief, your opinion, your viewpoint is very temporary, it is very biased, and it is based on very limited and short term intelligence. It is based on a very material viewpoint. It is based on your upbringing, your exposure in this world, कि आपने क्या देखा, क्या सुना, कैसे आपकी अपब्रिंगिंग हुई, क्या आपको किस चीजों ने आपको इन्फ्लुएंस किया लाइफ में, उन चीजों से आपके व्यू पॉइंट, आपके पर्सपेक्टिव्स, आपका बिलीफ सिस्टम, आपके ओपिनियन बने हैं। तो आपका क्या मानना है इज नॉट द धर्म, इज नॉट योर धर्म। आपको वो मानना चाहिए जो आपको भगवान मानने को बोलते हैं, ना कि अपना ओपिनियन होने चाहिए, लेकिन अपने ओपिनियन शुड बी शेप्ड
by the instructions, by the opinion of the advanced people, by the opinion of the Lord, by opinion of the Guru, by opinion of the spiritualists who actually know what the true dharma is. So बहुत सारे जो हम इस दुनिया में अपने बिलीफ सिस्टम्स बना लेते हैं कि मेरा ये मानना है या हमें ये करना है वो करना है, those things are actually constructed by our short-term vision, by material temporary vision, and with those viewpoints we keep typically ourselves in center. हम अपने आप को सेंटर में रखते हैं, not Krishna in center. लेकिन जो धर्म की परिभाषा है, जो डेफिनेशन धर्मा की है, उसमें कृष्णा को सेंटर में रखा जाता है, ना कि आपको. Which means if you keep Krishna in center, if you serve him, if you cater to his needs, your needs will automatically be fulfilled. Because he is the root of the tree. जिस पेड़ के आप फल हो या फूल हो, उसकी वो रूट्स हैं. तो पानी रूट्स को देना है, ना कि फल या फूल को. हर एक पत्ते को पानी नहीं देना. आप उस पेड़ का पत्ता हो, उस पत्ते को पानी नहीं देना, रूट्स को पानी देना है. रूट्स सब कुछ होल्ड कर रही हैं. सो कृष्णा की ओपिनियन मैटर करती है. इसलिए वी हैव टू शेप आवर व्यू पॉइंट्स, आवर परसेप्शंस, आवर perspectives, our opinions, belief systems in this world based on the scriptures. इसलिए आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने एक पोल डाली थी ग्रुप में कि should we read scriptures through our sentiments or should our sentiments be shaped by the scriptures? तो इसका करेक्ट आंसर ये था कि हमें स्क्रिप्चर्स को अपने बिलीफ सिस्टम से या अपने सेंटिमेंट से नहीं पढ़ना है. इनफैक्ट हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे बिलीफ सिस्टम स्क्रिप्चर से बनने चाहिए, शेप होने चाहिए. इज दैट पॉइंट समवट अंडरस्टैंडेबल? कि ये पॉइंट समझ आ रहा है कि हमें स्क्रिप्चर्स को अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के बॉक्स में नहीं डालना, क्योंकि हमारा बॉक्स तो इतना सा है. अगर हम उसमें स्क्रिप्चर्स को ठूसेंगे तो हमें स्क्रिप्चर समझ नहीं आएंगे, हमें लॉर्ड की इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आएंगी. हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को बड़ा करना है बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स. हमारी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इतनी है, अगर हम उसके बेसिस पे स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा. हमें स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने सेंटिमेंट्स, अपना बिलीफ सिस्टम डेवलप करना है. दैट इज कॉल्ड धर्मा. सो धर्मा की डेफिनेशन यहाँ पर रिलीजन नहीं है. धर्मा की डेफिनेशन है जो पर्पसेस हम अपनी लाइफ को देते हैं. तो हमारा पर्पस क्या है इस लाइफ में? क्या हमारा पर्पस सिर्फ पैसे कमाना है? क्या हमारा पर्पस सिर्फ जॉब पे जाना, 8 to 5 काम करना और अपने घर का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, सिर्फ यही है? या हमारा इस पर्पस में कहीं पे कृष्णा फिट होते हैं कि नहीं, कहीं पे भगवान फिट होते हैं कि नहीं, कहीं पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फिट होती हैं कि नहीं? अगर वो नहीं फिट होती तो ये आपने गलत पर्पस असाइन किया अपनी लाइफ को. So all your purposes should have the foundation of spirituality, the foundation of Krishna. Otherwise, those purposes should be given up. So Krishna is saying, give up such purposes. Similarly, all the viewpoints, all the belief system, opinions, sentiments that you have made so far in your life, they should be given up unless they include Krishna in them, unless Krishna is the center of those belief systems. इसीलिए हम बोलते हैं कि बचपन से ही बच्चों को ये एजुकेशन मिलनी चाहिए स्पिरिचुअलिटी की, स्क्रिप्चर्स की, हरि नाम की, कृष्णा की इंस्ट्रक्शंस की. क्योंकि ताकि उनका जो बिलीफ सिस्टम है, ताकि उनकी जो सेंटिमेंट्स हैं, ताकि उनकी जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे कंस्ट्रक्ट होगी, ना कि इस दुनिया की. क्योंकि दुनिया हमें बहुत सारी चीजें बताएगी और वो हम एक्सेप्ट करते रहेंगे. द वर्ल्ड इज सिटिंग हियर टू पोल्यूट अस, टू कंटामिनेट आवर कॉन्शियसनेस, टू distract us from our original purpose. The original purpose of Jiva is to serve Krishna, but the world will distract us and give us many opinions of its own. दुनिया में बहुत सारी चीजें बताएगी, ये आपका पर्पस है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस तरीके की हमें चीजें सिखाई जाएंगी दुनिया में. Unless you have the proper training of the scriptures right from the childhood, then your understanding, your belief system will be very broad. And there will be space for Krishna in that. Otherwise, अभी हमारी लाइफ हमने ऐसे बना ली है कि उसमें सब चीजों की स्पेस है, लेकिन भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवान की एक्टिविटीज के लिए कोई स्पेस नहीं बची, क्योंकि हमें दुनिया में ये सिखाया नहीं गया. इसलिए हमें बचपन से ही ये ऐड करनी है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इन आवर किड्स लाइफ, so that they know that that is the foundation, that is the root on which these
this tree will flourish with leaves and fruits and flowers. Otherwise, it's a सूखा हुआ पेड़. So when Krishna says Sarv Dharman Parityaja, he means to say give up such made up belief systems, such made up worldly viewpoints, such short term vision कि मैं क्या मानता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, ये सब चीजें give those things up. माम एकम शरणम रजा. फिर कृष्णा बोलते हैं कि सिर्फ एक मेरे शेल्टर में आओ. ठीक है, सिर्फ एक मेरी शरण लो, मतलब मेरी बात सुनो. अपने दिमाग से बहुत ज्यादा अपने दिमाग पे या अपने ओपिनियंस पे डिपेंड मत करो, मुझ पे डिपेंड करो. रिलाई ऑन मी. जैसे अर्जुन ने अपना चैरियट कृष्णा को दिया ड्राइव करने को, कि कृष्णा डिसाइड करेंगे कि क्या करना है वॉर में, है ना. उसने अपना चैरियट कृष्णा को दिया. सिमिलरली वी शुड ऑल्सो लेट कृष्णा ड्राइव आवर चैरियट इन दिस लाइफ. वी शुड follow his instructions through scriptures, through guru, through devotees. So Guru Sadhu Shastra should be the basis of our, that is how we take shelter of Krishna. कृष्णा का हम शेल्टर कैसे लेते हैं? थ्रू गुरु साधु शास्त्र. ये 3 एंटिटीज हमें भगवान ने दी हैं. हमें गुरु को फॉलो करना है, हमें साधु, जैसे कि हम प्रभुपाद को फॉलो करते हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस को, साधु मतलब डिवोटीज जो हमें मिले हैं लाइफ में, और शास्त्र मतलब स्क्रिप्चर्स. इन तीनों को फॉलो करना है. देन दैट मीन्स वी आर टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा. तो कृष्ण कहते हैं अपनी बुद्धि पे इतना रिलाई मत करो. क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है. पर हम क्या करते हैं? हम अपनी जजमेंट पे भी रिलाई ऑन आवर ओन जजमेंट, वी रिलाई ऑन आवर ओन इंटेलिजेंस एक्सेट्रा. वी डोंट रिलाई ऑन कृष्णा रियली. We don't have enough faith. We have more faith in our own opinions. We have more faith in our own intelligence, our own mind. We have faith in our जो भी हमने अपने लिए जो ये बनाई है ना, प्रोटेक्शन बनाई है कि मेरा रिसोर्सेज बनाए अपने लिए, पैसे इकट्ठा किए, हमें अपने उस पैसे पे फेथ है, हमें अपने फैमिली पे फेथ है, हमें अपने फ्रेंड्स पे फेथ है, हमें ये फेथ है कि हमारी गवर्नमेंट हमको प्रोटेक्ट करेगी, हमें ये फेथ है कि हमारे पुलिसमैन हमको प्रोटेक्ट करेंगे, डॉक्टर हमको प्रोटेक्ट करेगा. तो हमने इतनी सारी चीजें बनाई, हम इंश्योरेंस हमको प्रोटेक्ट करेगी, इंश्योरेंस कंपनीज. हमने इन सब लोगों का शेल्टर लिया है, लेकिन हमने भगवान का शेल्टर नहीं लिया. पर कृष्णा कह रहे हैं कि टेक माई शेल्टर. ये सब चीजों को भी ये सब चीजें होनी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग दैट यू गिव अप दोस थिंग्स. Material means of protection and these guidance should be there, but internally we should be surrendered to Krishna, and we should know that all these external things may or may not be able to protect us because they are material. So they may be able to help us, but always be ready that this is not what we depend on completely. Completely we depend only on one personality, one person, and that is the Supreme Personality of Godhead, Supreme Lord. That is where all our hopes, all our faith should lie. लेकिन लोग क्या करते हैं? वो अपना पूरा विश्वास, पूरा फेथ रखते हैं इस दुनिया की चीजों में, और भगवान को एकदम किनारे कर देते हैं. लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मुझ पे पूरा यकीन रखो, फिर you do your material duties and other things, and I will help you. तो ये 2 लाइंस हमने थोड़ा कवर की थी. इसके लिए हमने बहुत सारी स्टोरीज भी ली थी. युधिष्ठिर महाराज की स्टोरी, कर्णा का एग्जाम्पल आता है कि कर्णा ने अपना धर्म क्या समझा था? मित्र धर्म समझा था, कि मेरा धर्म तो सिर्फ अपने मित्र की सेवा करना है, क्योंकि अपने दुर्योधन की सेवा करना है, क्योंकि उसने मुझे इस लाइफ में चांस दिया है. लेकिन उसने सनातन धर्म को किनारे कर दिया कि मेरा इस लाइफ में यही पर्पस नहीं है, सिर्फ मित्र धर्म को निभाना. तो कृष्णा जब उससे मिलने आए और उसको बोला कि तुम हमारे साथ युद्ध करो, पांडवास के साथ युद्ध करो, तो उसने उनकी इंस्ट्रक्शन को किनारे कर दिया. एंड दैट्स नॉट द एटीट्यूड और कॉन्डक्ट ऑफ अ डिवोटी. सो हमें वो नहीं करना है. सो ऑल दीज मित्र धर्म या पति धर्म या पत्नी धर्म या देश धर्म, ये सब चीजें जो हैं, गिव अप दीज टाइप ऑफ dharmas, because unless there is Krishna in the center of those purposes, those opinions, those dharmas will not help you. So give up those type of dharmas and take my shelter only. ठीक है, मेरी शेल्टर में आओ, मतलब मुझ पे पूरी तरह से रिलाई करो, मुझ पे अपना फेथ रखो, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो. अच्छा कोई कह सकता है कि हमें तो फेथ नहीं है, हमें फेथ नहीं आता, हमने तो अपने आप को ही बचपन से सीखा है कि हमें अपने ऊपर ही विश्वास करना है, अपनी इंटेलिजेंस पे, अपने ही रिसोर्सेज जो हमने इकट्ठे किए हैं, अपनी मनी पे, अपने फैमिली पे, इसी पे ही फेथ रहता है हमको. तो हमें कंप्लीट फेथ नहीं आता कृष्णा के वर्ड्स पे, इंस्ट्रक्शंस पे. वी हैव फेथ इन आवर ओन बिलीव्स, आवर ओन ओपिनियंस, माइंडसेट्स, व्यू पॉइंट्स, है ना. तो कैसे हम क्या हमें what should we think about Krishna? What should help us give
faith in Krishna? What are some qualities of Krishna that should give you that are not there in this material world? जैसे कि आपके पति में या आपके लॉयर में या आपके इंश्योरेंस एजेंट में या आपके डॉक्टर में वो क्वालिटीज नहीं है जो कृष्णा में है. So we should focus on those qualities of Krishna to improve our faith so that we will completely take shelter of him. ऐसी क्या qualities हैं कृष्णा की? Can somebody list? There are like 3 or 4 that are very, very important points about Krishna, why we should have complete faith in him. Who can? मैं क्यों अपने मतलब मैं अपने पति की हेल्प ले सकती हूँ लेकिन इंटरनली आई शुड बी सरेंडर्ड टू कृष्णा. क्यों? ऐसा क्या डिफरेंस है? Mataji, he's the only one who can who can take us back to Godhead. He's our ultimate savior. He's the ultimate. Our husband cannot take it. Our husband won't be able to help us when it's time for our salvation. Only he can. बट सैल्वेशन छोड़ो, जैसे कि अभी हम दुनिया में हैं, ठीक है, मान लो कि मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ी आपत्ति आती है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी जैसे मैं कुछ I'll make it up, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ और कोई बहुत बड़ा लॉ सूट हो जाता है, तो मैं अपने इंश्योरेंस और इनकी मैल प्रैक्टिस इंश्योरेंस की है ना, इनकी हेल्प लूंगी, लॉयर की जो भी है ना, तो उनपे मैं उनका हेल्प ले रही हूँ, लेकिन इंटरनली आई एम सेइंग दैट आई शुड बी प्रेइंग वेरी इंटेंसली टू कृष्णा. इंटरनली आई शुड बी, अब इसमें डिलीवरेंस की या लिबरेशन की कोई बात नहीं है, बैक टू गॉड की कोई बात नहीं है. इन दिस मटेरियल सिचुएशन आई एम ट्राइंग टू completely internally intensely pray to Krishna that please help me in this situation, है ना, मैं ऐसा कर रही हूँ क्योंकि मेरी भक्ति अफेक्ट हो रही है, मेरा लाइफ अफेक्ट हो रही है, I want to please help me. So why should I be internally surrendered to Krishna when I cannot even perceive him, see him, whereas my lawyer is there who can help me more? ऐसा क्यों है? निर्भय प्रभु wants to share. Yes. The thing is, Mataji, ठीक है, lawyers की you are taking the help, like, but Krishna will give you the strength and guide you internally to go through that path. वो lawyer भी तभी तक कुछ नहीं कर पाएगा जब तक कृष्णा की mercy नहीं होगी. So he's showing you the path. कि इस lawyer के पास जो, like, he is internally guiding you which path to choose, how to choose, and that's, so you need that. The lawyer, that yes, the lawyer is fighting for you, but you cannot do that. You cannot pick that path until you have Krishna's mercy. So he is showing you the way internally. He is guiding you internally. Without his guidance, we cannot do it. Okay. Yes, Ms. Madhuri. I'm looking for 3 or 4 key points. मैं इसके बाद mention करूंगी, and I want you all to like really think about this. Yes, Rekha Mataji. I don't know if this is what you're looking for, but I'm talking from my personal experience, which I have faced recently. I mean, as you know, I did yesterday in my mom's remembrance, but 2 years back, after I lost my mom, I was really in a very, very bad shape. I was going to have mental breakdown, but somehow Krishna came into my life, you all came into my life. I was getting lot of internal strength that I wouldn't have found if I wouldn't have found the way to Krishna. So I feel that internally, even though we cannot describe it externally, we cannot show it, but internally, that strength I was getting from Krishna. Okay. You know. Yes. So Yes. that's what it is. हाँ, तो आपने बोला कि स्ट्रेंथ मिलेगी, इंटरनली गाइडेंस मिलेगी, नमिता माता जी ने बोला मर्सी मिलेगी, है ना, मर्सी गाइडेंस स्ट्रेंथ ही आपने बोला. दैट इज ऑल करेक्ट. व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज द qualities of Krishna that stand him apart as a person from any other person of this world. Yes, Poonam Mataji. माता जी मुझे लगता है कृष्णा की थोड़ी सी भी भक्ति करने पर हमें कभी धोखा नहीं मिलने वाला. जैसे दुनिया में हम अपने किसी पर विश्वास करते हैं, कभी ना कभी हम लोग हर्ट होते हैं, दुखी होते हैं, कभी परिवार वाले, कभी फ्रेंड्स, कभी कोई ना कोई हमें ऐसे करते हैं, लेकिन कृष्णा हमें कभी धोखा नहीं देता. बस मुझे ऐसा लगता है. I think qualities, I would say fearlessness, unka unconditional love. I don't know if Yes. that's what I'm thinking.
because He will love us unconditionally, even if we are with faults. Hmm. He will accept us, only that we have to surrender to God. And we cannot see His unconditional love until unless we haven't surrendered to Him. That's what Okay. I Let me feel His love is. Yes, Madhavi, wonderful. So I'll tell you three qualities of Krishna, ठीक है? जो आप please think about it very deeply, and this you can quote to anybody, ठीक है? So सबसे important बात कि Krishna compared to any other person, let's say I'm taking my husband या lawyer या doctor या कोई भी, Krishna is the complete knower, meaning that he knows the past, present, future. और कोई जो है वो मुझे हेल्प करेगा सिर्फ बेस्ड ऑन माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय करंट सिचुएशन. लेकिन कृष्णा जो मेरे लिए करेंगे वो मेरे कंप्लीट पूरे भले के लिए होगा. तो इसलिए प्रभुपाद बोलते थे जो हरी इच्छा, है ना, ये होता है सरेंडर, जो हरी इच्छा. क्योंकि उनको पता है कि मुझे इस सिचुएशन में कितना झेलना है वो मुझे उस हिसाब से देंगे. ही इज द कंप्लीट नोअर. If he thinks I need to keep suffering for now because that is will help me in future, then he will keep making me suffer. That is okay. Then I will keep suffering. So he's the complete knower of past, present, and future, which nobody else is. हमें भी अपना नहीं पता और किसी और को भी नहीं पता. तो इसलिए कृष्णा जो रिजल्ट देंगे उस सिचुएशन का, जिस आपत्ति में मैं हूं, वो इस उनकी कंप्लीट नॉलेज में होगा, एब्सोल्यूट नॉलेज में, जो किसी के भी पास नहीं है. So his vision is absolute. His vision is spiritual. So even though मैं मांग रही हूँ भगवान से कि मुझे इसमें से निकाल दो, लेकिन मेरा विजन शॉर्ट टर्म है, टेम्परेरी है, बायस्ड है ना, मटेरियल है. मुझे बस अभी की कंफर्ट की पड़ी है. लेकिन कृष्णा को पता है कि मुझे इसको कितना अभी तड़पाना है ताकि इसका फ्यूचर अच्छा होगा, इसकी डेस्टिनी अच्छी होगी. सो सिंस कृष्णा नोज माय पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कितने इसके कर्म काटने हैं थ्रू दिस सिचुएशन, ओनली ही नोज. नोबडी एल्स नोज कि इसके कितने कर्म कटेंगे इस पर्टिकुलर आपत्ति से, इस पर्टिकुलर डिफिकल्टी से, रिवर्सल से, है ना. वो मुझे उतने कर्म काटने में हेल्प करेंगे. प्लस इसकी ये रिवर्सल इसको भी झेलना चाहिए क्योंकि इसकी प्राइड हो गई है, तो इसका प्राइड कम करना है. सो मेनी थिंग्स कृष्णा विल अकम्प्लिश थ्रू दैट one difficulty that nobody else can do for you, है ना. तो कोई भी हमारे कर्म नहीं काट सकता, कोई भी हमारी प्राइड उससे कम नहीं कर सकता, कोई भी हमारी फ्यूचर डेस्टिनी उस पर्टिकुलर आपत्ति से डिसाइड नहीं कर सकता. बट सिंस कृष्णा इज कंप्लीट नोअर ऑफ आवर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ही विल अलाउ अस टू गो थ्रू दैट adversity for the correct amount of time that we need to suffer through for that time, है ना. तो इसलिए अगर हम कृष्णा का शेल्टर लेते हैं तो वी आर एश्योर्ड कि हमारी परफेक्ट आउटकम होगा इस आपत्ति का, बिकॉज ही इज गोइंग टू डिसाइड माई फ्यूचर बेस्ड ऑन my current, based on everything, based on his complete knowledge. So one quality that he has that nobody else has is that he's complete knower. Second quality that he has that nobody else has, that जो अभी रेखा माता जी ने थोड़ा बोला था, his unconditional love for us. He is our only best friend and our only well-wisher. Everybody will try to help you, but ultimately they will still keep their own interest at the center, है ना. Complete sacrifice नहीं कर पाएंगे वो अपने आप को. लेकिन कृष्णा, if you are surrendering yourself to Krishna, he says, I am your best friend, suhridam sarva bhutanam. I am your only well-wisher. I am your true well-wisher in this world. So his love for us is complete. His friendship, his for us is complete. तो जैसे माता जी ने बोला, वो ही सबसे ज्यादा गाइडेंस अच्छे से दे सकते हैं. कोई भी और दुनिया का इंसान हमें इतनी अच्छी गाइडेंस नहीं दे पाएगा, इतना अनकंडीशनल लव और फ्रेंडशिप. सो वी शुड लीव इट अप टू हिम, क्योंकि वो हमारे जैसे आप अपनी माँ बाप पे छोड़ देते हो, चीजें छोड़ दो, क्योंकि उनको हमारे भले की पड़ी है, उनको पता है इसको अभी क्या चाहिए, है ना. इसलिए कृष्णा को भी पता है कि he has our best interest at heart that even we don't have. We don't know what is best for us. We are only asking for short-term comforts. But Krishna, being the complete knower and being the absolute best friend, absolute well-wisher, will arrange the perfect situation for you. ठीक है. तीसरी quality that Krishna has that nobody else has is that he cannot make any errors. He is absolute truth. वो कभी कोई गलती नहीं कर सकते. So if he has put us into this situation, we should not complain. We should never complain or criticize him. जैसे लोग कई बार जब आपत्ति में होते हैं, डिफिकल्टी में होते हैं, तो क्रिटिसाइज करते हैं, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमने तो सब अच्छा किया है, हमेशा सबका भला किया है, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, like that. But no, you don't know your past. You're not the complete knower.
भगवान की जो कर्म की गुत्थी है उसमें कभी कोई गलती नहीं हो सकती। भगवान की जो कर्म की चक्की है उसमें सब ठीक ठीक पिसता है, इक्वली पिसता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई गलती हो गई, आपको कोई ऐसा कार्मिक रिएक्शन मिल गया जो आपको नहीं भोगना था। सो ही कैन नॉट मेक एनी एरर। ही हम एरर प्रोन हैं, हम एरोनियस, हम इसलिए कहते हैं ना, टू एयर इज ह्यूमन नॉट डिवाइन। टू एयर इज ह्यूमन, सिंस ही इज डिवाइन ही कैन नॉट मेक एरर्स। तो हमारा डॉक्टर गलती कर सकता है, हमारा इंश्योरेंस एजेंट गलती कर सकता है, हमारा लॉयर गलती कर सकता है, गवर्नमेंट गलती कर सकती है, लेकिन कृष्णा गलती नहीं कर सकते। तो अभी आप जो भोग रहे हो वो कृष्णा की इच्छा से ही भोग रहे हो। सो डू नॉट कंप्लेन, जस्ट टॉलरेट इट, बिकॉज दिस इज फॉर योर ओन गुड। तो इसलिए knowing that he is the complete knower, he is our only best friend and best well wisher, and he cannot make any errors, he does not make any errors, since it's his absolute truth, param satya. Knowing these three things, we should take shelter of him. तो अगर हमें अभी फेथ नहीं भी है, हमें ये पता होना चाहिए कि कृष्णा ने भगवत गीता में ये चीजें डिक्लेयर की हैं कि मुझे सब, तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता है अर्जुन। ठीक है, हमने कितने जन्म साथ में बिताए हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे वो सब पता है। और फिर वो बोलते हैं कि सुहृदम सर्वभूता नाम, कि मैं सबका बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं सबका ओनली वेल विशर हूँ। और फिर वो बोलते हैं कि मैं कोई गलती नहीं करता कभी, मैं एब्सोल्यूट ट्रूथ हूँ। तो इसलिए हमें जब ये बातें पता होंगी, देन वी विल बी एबल टू सरेंडर टू कृष्णा इंटरनली इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि अलाउ कृष्णा टू अरेंज एवरीथिंग फॉर यू परफेक्टली। एंड सोचो कितनी कितनी अच्छी बात है, कितनी रिलैक्सिंग बात है। हमने कंप्लीटली कृष्णा को दे दिया, आपकी जो इच्छा। इसलिए प्रभुपाद का ऐसे था, जो हरी इच्छा, है ना। अपने एंडेवर्स करते रहो, अपने एफर्ट्स करते रहो, बट इंटरनली ऑलवेज बी गाइडेड बाय कृष्णा, ऑलवेज बी गाइडेड बाय गुरु साधु शास्त्र। इंटरनली ऑलवेज से कि मैं तो भगवान भरोसे हूँ, जो हरी इच्छा। तो इसलिए अलाउ कृष्णा टू अरेंज एवरीथिंग परफेक्टली फॉर यू। And sometimes it may seem that Krishna did not fulfill our wishes as we wanted. मुझे तो ये चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं मिला। So we should know that his vision, he is complete knower, he is complete best friend, he is complete error free. तो जो उन्होंने हमारे लिए अरेंज किया वो बेस्ट ही होगा। जो मुझे चाहिए था, he is not giving you what you want, he is giving you what you need. ठीक है ना, he is not just fulfilling your desires, he is doing as a parent will do for their child. अगर अभी child को चांटा पड़ना था तो चांटा मिला है अभी, दैट्स ओके। ठीक है ना, द चाइल्ड शुड नॉट से कि मुझे चांटा क्यों मारा, नहीं, यू डिजर्व्ड इट राइट नाउ, यू नीडेड इट राइट नाउ, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन फ्यूचर। So in this way, Krishna does not just fulfill our desires as we want, he gives us what we need. And it may seem that in short term we are going through difficulties, devotees की life में भी difficulties आती हैं, तो ऐसा लगता है क्यों difficulty आ रही है, but just let Krishna, just surrender unto him and let him arrange situations for you, he knows best. ऐसे एक सीरियल आता था, फादर नोज बेस्ट। तो ये हमें अपना लाइफ का वो मंत्रा बना लेना चाहिए, कृष्णा नोज बेस्ट। So Krishna knows best. We should rely completely on Krishna. But हमारी टेंडेंसी क्या है, हम रिलाई करते हैं अपनी माइंडसेट्स पे, अपनी जजमेंट पे, अपनी इंटेलिजेंस पे, अपने बिलीफ सिस्टम पे, है ना, अपने बनाए हुए रिसोर्सेज पे। तो वो सब चीजों को जुडिशियसली यूज करो, है ना, बट इंटरनली बी गाइडेड by Krishna. Internally have complete faith and surrender to Krishna. So that is what it means by Mamekam Sharanam Braja, ki completely be taking shelter of Krishna. जैसे गोवर्धन लीला का बेस्ट एग्जांपल आता है, हमने पिछली बार गोवर्धन लीला डिस्कस की थी कि उसमें what did Brajvasis do? Even though Krishna's guidance, Krishna's instruction to not worship Indra and to worship Govardhan seemed very difficult to follow, because they were following a tradition for so many years, है ना. Similarly, we are also following our belief system and our intelligence for so many years. So we are relying on our money, on our resources that we have accumulated for so many years. Now it's very difficult to give up those and to rely on Krishna. So it is hard. Brajvasis के लिए भी hard था. Lekin still you can see their complete surrender, that Krishna will not guide us wrong. He has saved us from so many calamities, so many of these demonic people that came to our Vrindavan. He saved us, so why not rely completely on him? And they relied on him. Similarly, we should also rely on him. And in short term, what happened? They were put into such great difficulty. Indra ki wrath unko सहनी पड़ी, Indra का anger unko सहना पड़ा, है ना. For 7 days and 7 nights they were tormented with so much rains and so much storm and thunder and lightning and कितना कुछ हुआ. But
despite those short-term difficulty, ultimately they are the best devotees of the Lord. Brajvasis are considered the topmost devotees of the Lord. Kyun? Because in this way you can see their complete surrender to the Lord. They follow his instructions without any question. And even though short-term में disturbances आएंगी, fine. Ultimately, उन्होंने उन 7 दिन में भी जो difficulty आई, क्या देखा कि कृष्णा, हम कैसे हमने पढ़ा था ना, the storm that's going on underneath Govardhan. क्या स्टॉर्म हो रहा था कि कृष्णा को कंप्लीटली देखने को मिल रहा है. ही इज नॉट गोइंग ऑन हिज गोचारण लीला एनी मोर, है ना. तो गोपीज उनको दिन में भी उनके साथ कंप्लीटली दे कैन डांस अराउंड एंड दे कैन हियर हिज फ्लूट द होल डे. वो यशोदा मैया उनमें कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड है. राधा रानी वहां पे कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड है. गोपीज एंड गोपास, किसी को भी कोई सेपरेशन नहीं, कंप्लीटली ही इज देयर. And that is the mood of a devotee, that even though there is a difficult situation right now, hold the hand of Krishna even stronger. और ज्यादा जोर से पकड़ लो, और look for the positives in that reversal, in that difficulty, in that adversity. Look for the positives कि this is Krishna's arrangement to for me to take even stronger shelter of Krishna. कि अब मैं और ज्यादा अच्छे से intensely pray करता हूँ. क्योंकि जब अच्छी सिचुएशन थी तो हमारा नाम में मन, हरि नाम में मन नहीं लगता था, भक्तों के संगा में मन नहीं लगता था. लेकिन अब मेरे पास डिफिकल्टी आई है, तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू इवन होल्ड ऑन टू हिज हैंड स्ट्रॉन्गर. अब हरि नाम में और इंटेंसली प्रे करूंगा, है ना, क्योंकि अब आपत्ति आई. सो द रिवर्सल्स को कैसे लेना है हमें, दिस इज ऑल्सो एन आर्ट कि रिवर्सल्स में हमें भगवान का हाथ और जोर से थाम लेना है. ठीक है. I'm just going to pause here for a few minutes. Let me see if any devotees want to share any realizations, reflections. Can I, I've learned the verse during this. Can I Okay. recite it? Yes, Mataji, please. Okay, bear with me. Here we go. सर्वधर्मं परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. Hari Bol. Thank you, Mataji. That is wonderful. Thank you for inspiring us to learn. Very wonderful. So please, whoever has not memorized, please continue memorizing. तो इस पॉइंट पे जो हमने अभी बात की कि क्या होता है शेल्टर लेना, मामेकम शरणम रजा का क्या मतलब है. Anybody else wants to share their realization? तो जैसे कि आप ये सोचो कि जो संसार है, वर्ल्ड है, इट्स लाइक अ वेरी बिजी रोड. और रोड में क्या है कि जगह जगह से ट्रैफिक आ रहा है, इधर से भी कार आ रही है बहुत तेज स्पीड से, इधर से भी आ रहा है, जैसे कोई ट्रक आ रहा है ना. और एक छोटा बच्चा है जिसको रोड क्रॉस करनी है, तो या तो वो अपने आप रोड क्रॉस करे. हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप रोड क्रॉस करने की ट्राई कर रहे हैं. लेकिन बेस्ट ये है कि वो अपने पिता का हाथ थाम ले, है ना, पिता का हैंड होल्ड कर ले. सो इफ ही होल्ड द हैंड ऑफ हिज फादर, हैंड क्या होल्ड कर ले, गोद में चढ़ जाए, बोले कि मुझे अपनी गोद में ले लो, तो कितनी आराम से रोड क्रॉस हो जाएगी, राइट. इट इज सच अ रिलैक्स, देन ही डजंट हैव टू वरी. वो ले जाएंगे, पिता ले जाएंगे, उनकी सरदर्दी, पिता ले जाएंगे. व्हाई डू आई नीड टू वरी, right? It's up to him, it's his responsibility to help me cross the road now. Why? Because I have taken his shelter, I have decided to hold his hand. लेकिन एक बच्चा बोले नहीं, मैं तो अपने आप करूंगा, आप खड़े रहो, मैं अपने आप करूंगा, क्या होगा, थोड़ी देर में he'll be hit by the bus. So that's not that's the devotee attitude, that we even hold the hand of Krishna very very strongly and और गोद में चढ़ जाओ. तो एक मुझे बहुत अच्छी पोएम इससे याद आती है, आपने सबने सुनी होगी ये. एक पोएम होती थी, उसका नाम था फुटप्रिंट्स, है ना, फुटप्रिंट्स. जिसमें था कि वो बोलता है डिवोटी भगवान को कि मैं पूरी लाइफ जब चल रहा था तो मैंने 2 सेट ऑफ फुटप्रिंट्स देखे. इन द सैंड्स ऑफ टाइम देयर वर 2 सेट्स ऑफ फुटप्रिंट्स. एक मेरे फुटप्रिंट्स थे और एक आपके फुटप्रिंट्स थे. ठीक है, तो जिंदगी में आप मेरे साथ चल रहे थे सारा टाइम. लेकिन भगवान से वो कंप्लेन करता है कि इन द सैंड्स ऑफ टाइम आई आल्सो सॉ दैट व्हेन आई वाज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन there was only one set of footprints, which means that I was walking alone. Why did you leave me in my difficult times? Where did you go? In my difficult times, you were not there, O Lord. So Bhagwan bolte hain usko ki, oh my child, those one set of footprints that you saw were actually mine, and I had carried you in my arms. So wo tum akele nahi the, I had actually carried you in my arms. So that's a beautiful poem. I think it's called Footprints, and it starts within the sands of time. I saw these.
2 sets of footprints, and Lord was always with me when I was walking through my whole life. लेकिन उन डिफिकल्ट टाइम्स में सिर्फ एक ही सेट बचा, ऐसा क्यों हुआ, वो भगवान से पूछते हैं, तो भगवान ये बोलते हैं। और इसी तरीके से ब्रह्मा जी अपनी प्रेयर्स में बोलते हैं, जब ब्रह्मा विमोहन लीला हुई थी उसके बाद उन्होंने बहुत सारी प्रेयर्स ऑफर की थी, जब उनको पता चला कि मुझसे इतना down बड़ा for anyone अपराध, else also, कि इतना बड़ा अपराध हो or गया just me? है। Voice काफी तो भगवान तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, ये वर्स बोलते हैं, बहुत सुंदर वर्स है। लेट मी पुल इट अप ऑन स्क्रीन बट आई विल रिसाइट मीनवाइल। समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम् महत्पदं पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुदं वात्स्पदं परं पदं 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 यद्विपदां न तेषाम्। लेट मी ओपन दिस वर्स। सो इस वर्स का मतलब है, बहुत अच्छा मतलब है इसका, और ये भागवतम की वर्स है। और ये बहुत ही ज्यादा पोएटिक भी है ये वर्स, क्योंकि इसमें से पदम वर्ड हर एक लाइन में उसका अलग मीनिंग से यूज हुआ है। लेट मी शो यू, इसका मीनिंग भी पढ़ते हैं एक बार, बिकॉज दिस वर्स टेल्स अस द प्रॉपर सिचुएशन ऑफ दिस वर्ल्ड। सो देखो, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, कि वो लोग जो आपके लोटस फीट को पकड़ लेते हैं, महत पदम पुण्य यशो मुरारे, who is the shelter महत पद of this whole material world, महत मतलब material world, material creation का जो shelter है, ठीक है, that मुरारे मुरारी भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम। लुक एट दिस लाइन, वत्स होता है काफ, गाय का बच्चा है ना, उसको बोलते हैं वत्स या काफ। जो ये भवाम बुधिर है, भवाम बुधिर मतलब इस ओशन ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड, ओशन ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड इज वास्ट, है ना। इफ वी आर ट्राइंग टू क्रॉस दिस ओशन ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड, इट्स वेरी वास्ट। लेकिन जिन लोगों ने आपका शेल्टर लिया है, उनके लिए ये मटीरियल ऑफ दिस ओशन वर्ल्ड, इट्स लाइक वत्स पदम, मतलब द होल ओशन ऑफ मटीरियल वर्ल्ड इज कंटेन्ड इन द हूफ प्रिंट ऑफ अ काफ, कि गाय के बच्चे का जो काफ का प्रिंट होता है, फुटप्रिंट होता है, हाँ, उसमें सारा ये भव सागर समा जाता है उस व्यक्ति के लिए, और उसको इजीली क्रॉस कर सकता है। सो पूरा द होल ओशन ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड सीम्स लाइक द फुटप्रिंट ऑफ अ काफ। काफ का फुटप्रिंट कितना छोटा सा होता है। सो टू दोज डिवोटीज दैट हैव टेकन योर शेल्टर, दिस द ओशन ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड सीम्स लाइक द वाटर कंटेन्ड इन द हूफप्रिंट ऑफ अ काफ, कि उस हुप्रिंट में जो थोड़ा सा पानी आएगा उसके जैसा लगता है पूरा ओशन ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड, ठीक है। और उन लोगों को इस दुनिया के पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, इन दिस वर्ल्ड देयर इज डेंजर एट एवरी स्टेप, पदम पदम यद विपदाम, हर पद पे विपदा है, हर स्टेप पे डेंजर है। जैसे कि हमने रोड का एग्जांपल लिया, हर स्टेप पे डेंजर है, कभी इधर से कार आ रही है, कभी उधर से। तो इस वर्ल्ड में भी हर स्टेप पे डेंजर है, कभी अपने फिजिकल हेल्थ का, कभी मेंटल हेल्थ का, कभी जॉब पे, कभी फैमिली से, कभी फैमिली मेंबर्स का, कभी कम्युनिटी में, कभी कोई नेचुरल कैलामिटी, कभी कोई कंट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम, कभी कोई मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, पदम पदम पे विपदा है। पर उन लोगों को ये विपदा फील नहीं होती। पदम पदम यत विपदाम ना तेषाम, तेषाम मतलब उन लोगों को, किन लोगों को, जिन्होंने आपके लोटस फीट का सहारा लिया है। So for those who have accepted the boat of the lotus feet of the Lord, who is the shelter of this cosmic manifestation and is famous as Murari, the ocean of the material world is like the water contained in a calf's hoof print, and their goal is Param Padam Vaikuntha. So unki supreme destination Vaikuntha hai, the place where there is no material miseries, not the place where there is danger at every step. So I really love this verse. It comes in 10th canto, after the Brahma Vimohan Leela, where Brahma ji is offering prayers to Krishna. So this should be the attitude of a devotee, कि when reversals come, take very strong shelter of Krishna. ठीक है? तो ये एक पूरा टॉपिक है अपने आप में, कि जो डिवोटीज होते हैं वो किस तरीके से एडवर्सिटी से डील करते हैं, कि दे यूज एन एडवर्सिटी टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, दे यूज द डिफिकल्टी टू रियलाइज दैट दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ डेंजर्स, एंड जितना जल्दी से जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। तो इसलिए वो उस एडवर्सिटी में ये बात रियलाइज, ना कि कंप्लेन करना भगवान से, बल्कि ये रियलाइज करना कि एक्चुअली पदम पदम यत विपदाम, देखो एक और विपदा आ गई, और उसमें वो डिटैच होने की कोशिश करते हैं फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड अटैच देमसेल्व्स टू कृष्णा मोर एंड मोर।
तो विपदा से कैसे हैंडल करते हैं। तीसरा, वो भगवत गीता के प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं कि टॉलरेट दिस सिचुएशन, इट इज टेम्परेरी, चली जाएगी ये भी, है ना। इस दुनिया में तो ये लगा ही रहेगा ऊपर नीचे, जस्ट टॉलरेट इट। और क्या करते हैं, दे लर्न फ्रॉम द एडवर्सिटी, लर्न लेसन, लर्न फ्रॉम द रिवर्सल्स, है ना, टेक अपॉर्चुनिटी टू लर्न, दे टेक अपॉर्चुनिटी टू हम्बल देमसेल्व्स इन दैट सिचुएशन, ह्यूमिलिटी डेवलप करो, जरूर मेरी कुछ प्राइड रही होगी जो भगवान काट रहे हैं, तो हम्बल योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन, बिकम मोर हम्बल जब विपदा आए, एंड सी दैट सिचुएशन एज कृष्णाज अरेंजमेंट, उसमें देखो कि ये कुछ ना, ये मेरी प्योरिफिकेशन के लिए है, कृष्णा ने अरेंज की सिचुएशन मेरे कर्मा काटने के लिए, मेरी अनर्था से मुझे प्योरीफाई करने के लिए, ये सिचुएशन मेरे भले के लिए अरेंज की गई है, सिंस ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, सो ही मस्ट हैव पुट मी इन दिस सिचुएशन फॉर अ रीजन, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड कुछ गलत नहीं कर सकता, वो ही इज माय फादर, ही कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग फॉर मी, तो अगर अभी मुझे इस टाइम पे मेरी पिटाई हो रही है, सो देयर इज बिकॉज ऑफ दिस, देयर इज अ रीजन एंड आई जस्ट नीड टू टॉलरेट इट। एंड ये सोचना चाहिए कि ये सिचुएशन बहुत बुरी हो सकती थी, ये तो कृष्णा की मर्जी है कि अभी ये मुझे कम प्रॉब्लम मिल रही है, that he has given me less problems right now because of his mercy, supreme mercy, otherwise और problem होती। So like that devotees take complete shelter of Krishna. So ये था इस लाइन का मतलब, माम एकम, और दूसरा माम एकम, सिर्फ मेरी शरण में आओ, ना कि किसी और की, देवी देवता ये सब या जो दूसरे हमने चीजें बनाई हैं इस दुनिया में जिनकी हम शरण लेते फिरते हैं, उनको छोड़ो, उन सब धर्मों को छोड़ो, माम एकम शरणम व्रज, ठीक है, क्योंकि ही इज माय अनन्य लॉर्ड, आई हैव अनन्य भक्ति टू हिम, है ना, ही इज माय ओनली शेल्टर। फिर बोलते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डू नॉट फियर। अब इसमें दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है पाप, तो थोड़ा सा इसको लेते हैं, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है फियर, ये दो चीजों पे मैं फोकस करूंगी, पाप क्या है और फियर क्या है। तो इस दुनिया में ना दो तरह के लोग रहते हैं, ठीक है, एक तो वो लोग जिनको लगता है कि हम बहुत पापी हैं, वी आर टू सिंफुल, दैट इट इज नाउ वेरी डिफिकल्ट, टू लेट फॉर अस टू कम टू दिस पैथ ऑफ डिवोशनल सर्विस, है ना। As devotees who are now as sadhakas, we know that we are all very much fallen. We have no qualifications. We are very papi, and even despite being in devotional service, we are still on a daily basis committing a lot of sins. है ना, ये हमें पता है। लेकिन कई लोग ये इस वजह से आते ही नहीं in on this path of spirituality or devotional service, because they think that we are too sinful and I cannot do it. ठीक है। Then there is other type of people in this world who think हम तो कोई पाप करते ही नहीं, we have never committed any sins, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम दुनिया में बहुत, हमने तो अच्छे कर्म किए हैं। ये अच्छे कर्म वाला कॉन्सेप्ट इतना बेकार है कि ये this is a very big problem in people's progress, because they keep thinking, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, मैं तो कोई किसी का नुकसान नहीं करता, अच्छे से ऑनेस्टली अपना काम करता हूँ, कोई बुरी आदत भी नहीं है, कोई मीट नहीं खाता, कुछ भी नहीं, so I don't need to do it, I don't need to do it, सिर्फ मेरे अच्छे कर्म ही मुझे तार देंगे। Actually दो, so between these two situations, जिनको लगता है हम बहुत पापी हैं इसलिए नहीं कर सकते, और जिनको लगता है हमने कुछ किया ही नहीं गलत, हमें करने की जरूरत नहीं है, what do you think between these two people, किसकी सिचुएशन बेटर है और किसकी खराब है? माता जी, जो ज्यादा अच्छा है उसकी ज्यादा खराब सिचुएशन है। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि जो बुरा होता है वो कम से कम अपने पापों से थोड़ा सा भी अगर उसे सुनने को मिलेगा सत्संग, तो वो डर जाएगा अपने आप से कि मैंने तो इतने गंदे काम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अभी मेरा आगे क्या होगा, अब तो केवल और केवल भगवान ही मुझे बचा सकता है, उसके अंदर ये बात है। और जो बहुत अच्छा पहले से ही अच्छे कर्म वाला होता है उसको कोई डर ही नहीं है, मैं तो अपना अच्छा हूँ। ये जो सो कॉल्ड अच्छे कर्म है ना, ये लोगों को ले डूबते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो बड़ी अच्छी लाइफ जीते हैं, हम तो किसी का कुछ बुरा नहीं करते, बल्कि हम तो अच्छा करते हैं लोगों का। So they are not able to come to the path of self-realization. It's very hard actually. But you're right, जो fallen होते हैं, जिनको पता है कि हम कितने fallen हैं, कितनी हमने पाप किए हैं, once they come in contact with this knowledge of Bhagavad Gita, actually they go very deep. And I'm one of the prime example of that, who knew that it's very, very sinful and needs to very quickly, very intensely take shelter of Krishna, नहीं तो कुछ बचेगा, कोई hope नहीं है। ऐसे प्रभुपाद के
एग्जाम्पल लो, जब प्रभुपाद अमेरिका में आए तो वो सब लोग कितने ही फॉलन थे, है ना, कितने तरह की उनमें बुराइयां थी, LSD करते थे, हीरोइन, मेरुआना, कोकेन एंड ड्रग अब्यूजर्स एंड अनकंट्रोल्ड सेक्स एंड बहुत सारी चीजें, प्रॉब्लम्स थी, राइट? But they were able to take shelter of Krishna very, very sincerely, intensely once they came into contact with a sadhu. जब उनको reality पता चली, so they are just in darkness. As soon as somebody shows them the light, actually such people are able to come out. ठीक है, ज्यादा बुरा उन लोगों का होता है जिनको लगता है कि हमारी तो बहुत बढ़िया है, सब ठीक है. The people, so I sometimes feel that tamasic people are actually in a better situation, क्योंकि जो सात्विक लोग होते हैं, they are actually on a higher platform and it is very easy for them to take the next step and enter into the divine realm, into the transcendence, into self realization. बहुत quickly वो आ सकते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो आना नहीं चाहते. ये वो लोग हैं जिनको इतनी अच्छी कार मिली है, जिनको मर्सिडीज कार मिली है, लेकिन वो कार को गराज से ही नहीं निकाल रहे. लेकिन तामसिक लोग, ऐसा हो सकता है अगर उनको पता है कि वी आर वेरी सिंफुल, दे आर in a very poor situation, they have a lot of steps to go before transcendence, before divine, before self realization. उनकी टूटी फूटी कार है, लेकिन वो कार को चला रहे हैं, वो कार को अब फुल स्पीड पे और पूरी इंटेंसिटी से लेके जाएंगे, इसलिए वो अच्छी सिचुएशन में है देन अ पर्सन हु गॉट अ मर्सिडीज कार, हु गॉट अ स्पोर्ट्स कार, बट द कार इज जस्ट पार्क्ड इन द गैराज. ऐसी कार का क्या फायदा? सो कृष्णा ऐसे लोगों के लिए बोल रहे हैं कि अगर तुमको लगता है तुमने बहुत पाप किए हैं, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, हम सर्व पापे भ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से, एक बार शेल्टर तो लो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, माँ शुचा. जैसे लॉर्ड राम ने बोला था कि अगर रावण आज भी मेरी शरण में आ जाए, एक बार वो ये बोल दे कि आई टेक योर शेल्टर, देन मैं उसको लंका का, मैं उसको छोड़ दूंगा और लंका का राजा बन जाएगा, वो नहीं, अयोध्या का राजा बना दूंगा. उन्होंने कहा विभीषण मेरा शेल्टर लेगा तो मैं इसको लंका का राजा बना दूंगा. तो वानर लोगों ने पूछा, आप अगर लंका विभीषण को दोगे, तो अगर रावण ने कल आपका आके शेल्टर लिया तो आप क्या करोगे? What if Ravan comes tomorrow and he says, I want to take your shelter? So Lord Ram said, okay, then I will give Ayodhya to Ravan. So Monkey said, oh, if you give Ayodhya to Ravan, then what will happen to Bharat? Bharat is ruling Ayodhya. So Lord Ram ne kaha, Bharat can rule Vaikuntha. So then Monkey said, but if he gets Vaikuntha, then where would you rule? That's your abode. आप वैकुंठा में रहते हो ना. तो लॉर्ड राम ने बोला कि मैं तो अपने डिवोटीज के हृदय में रहता हूँ, मैं वहां पर राज करूंगा. I do not need Vaikuntha's to rule. So इस तरीके से अगर कोई एक बार भी शेल्टर लेता है, लॉर्ड राम बोलते हैं, सक्र देवा प्रपन्नो यस तवास्मिति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम. सक्र देवा प्रपन्नो यस, एक बार भी कोई मुझे बोल दे कि तवा स्मृति च याचते, वो ये याचना करे, वो ये प्लीड करे कि आई एम योर्स तव अस्मि, आई एम योर्स तव अस्मि, मैं आपका हूं. एक बार, सकृत मतलब एक बार कोई ये बोल दे, ददामि अभयम सर्वदा तस्मै, मैं उसको हमेशा के लिए फियरलेसनेस देता हूँ. अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरी वाव है, that I will make that person fearless. अगर कोई एक बार ये बोल दे कि मैं आपका हूँ. इसी इन द सेम मूड कृष्णा भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई एक बार मेरा शेल्टर लेता है और सिर्फ मेरा शेल्टर लेता है, माम एकम शरणम रजा, मैं उसको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा. डू नॉट फियर. वो भी ये बोल रहे हैं कि कोई डरने की, घबराने की बात नहीं है. तो देयर इज नेवर, इट्स नेवर टू लेट. एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, एवरी सेंट हैज अ पास्ट, है ना. हर एक सेंट जो है वो पास्ट में कुछ सिनर ही रहा था. वाल्मीकि बीइंग द प्राइम एग्जाम्पल, वो क्या थे? वो रत्नाकर डाकू थे, है ना, जो वाल्मीकि बन गए. सो एवरी सेंट हैज अ पास्ट, बट ऑल्सो द स्टोरी शोज दैट एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर. जैसे रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है, तो हम लोग भी भगवान का नाम लेने से, और उन्होंने नाम कैसे लिया था? मरा 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 करके, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज गुरु, कंप्लीट शेल्टर टू हिज गुरु. गुरु ने बोला, नारद ने बोला कि देखो मत करो, ये जो तुम पाप कर रहे हो जानवरों को मारने का, ये मत करो. और भगवान का नाम लेने में फेथ नहीं है, कोई बात नहीं, मरा मरा बोलो, राम मत बोलो, मरा मरा बोलो. तो मरा मरा बोलने से ही रत्नाकर वाल्मीकि बन गए, सोचो. और हम लोग अगर पूरी इंटेंसिटी से, सिंसेरिटी से, विद इंटेंशन टू प्लीज आवर गुरु, विद इंटेंशन टू प्लीज द लॉर्ड नाम ले रहे हैं, तो सोचो हम क्या बन सकते हैं, हमारा कितना भला हो सकता है.
जब कोई गलत तरीके से नाम लेने से डर सकता है, जब अजामिल को सिर्फ नारायण बोलने से सेकंड चांस मिल सकता है, जब रत्नाकर को मरा मरा बोलने से ये राम मिल सकते हैं, तो फिर हम तो सिंसेरिटी से इंटेंशनली भगवान का नाम ले रहे हैं, राइट? सो हमें नाम लेना नहीं छोड़ना. दिस इज द ओनली उपाय इन दिस एज. सो कृष्णा सेज माम एकम शरणम रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा. तो वी डू नॉट थिंक कि हमारे पाप जो है वो भगवान से ज्यादा, भगवान की प्योरिटी से ज्यादा है, भगवान की पावर से ज्यादा है. ही इज ऑल पावरफुल. ही इज ऑल पावरफुल. So our sins, our impurities, our contaminations are not bigger than Lord. अगर हम ये सोचते हैं कि हमें भगवान का नाम बचा नहीं सकता, इसका मतलब हमें फेथ नहीं है. एक भगवान का नाम कितने पाप काट सकता है, कितने पाप काट सकता है, आपको पता है? सो वी शुड नॉट थिंक दैट आवर कंटेमिनेशंस आर बिगर देन द लॉर्ड. ठीक है, हमारी कोई भी इम्प्योरिटीज भगवान को इम्प्योर नहीं कर सकती. तो इसलिए दिस शुड नेवर बी एन एक्सक्यूज कि मैं बहुत सिंफुल हूँ एंड आई शुड कैन नॉट टेक अप भक्ति, कि मेरे लिए बहुत लेट हो गया. इट्स नेवर टू लेट. ठीक है. तो इसका नाम के ऊपर एक एग्जाम्पल, एक और भगवान राम की लीला में एग्जाम्पल आता है. जब युद्ध हो चुका था खत्म, तो कुछ डीमंस ऐसे थे, विभीषण ने उनको चॉइस दी. विभीषण को लंका मिल गई. ठीक है, विभीषण इज नाउ रूलिंग लंका. So there were some demons who were still allegiant to Ravan, and they said, we will not live in Lanka under Vibhishan's rule. हम विभीषण के रूल में नहीं रहेंगे, हमें लंका छोड़ के जाना है. और विभीषण ने उनको पूरी वो दी छूट कि आप जाओ. अब ऐसा सिर्फ एक ही डीमन था लेकिन जिसको लंका छोड़ के जाना था. Everybody else wanted to stay under the rule of विभीषण. उस डीमन ने बोला विभीषण से, ये जो इतना मुझे लंका छोड़ के जाना है, लेकिन इतना बड़ा ओशन है ना, वो जो ओशन जिसको क्रॉस करके लॉर्ड राम एंड मंकीज गए थे अयोध्या में, ये ओशन में क्रॉस करके कैसे जाऊं? मुझे कुछ दो जिससे मैं ये ओशन क्रॉस करके जा सकूं. तो विभीषण ने उसको एक पेपर दिया, एक चिट दी, एक पेपर या कुछ फोल्ड करके. उसको कहा कि ये पकड़, मैं ट्राइंग टू रिमेम्बर हाउ द पास्ट टाइम गोज. हाँ, उसको कहा कि ये लेके जाना है. ठीक है, इसको पकड़ के ले जाना है और इसको खोल के नहीं देखना. ठीक है, इसको खोल के नहीं देखना कि इसमें क्या है. तो उस डीमन ने सोचा, अच्छा बस इससे मैं तर जाऊंगा, मतलब मैं क्रॉस कर जाऊंगा ओशन. तो हाँ, उन्होंने कहा ये चीज इतनी, इसके अंदर एक बहुत पावरफुल चीज है, ये क्रॉस कर जाओगे, इससे तुम चले जाओगे. तो जब वो जा रहा था रास्ते में, तो बीच में पहुंच गया, मिडल ऑफ द ओशन में. तो उसने सोचा, ये मैं बड़े आसानी से, कोई मुझे वेव्स के थपेड़े नहीं पड़े, कुछ नहीं हुआ, मैं बड़ी आसानी से क्रॉस कर रहा हूँ. ओशन इज वेरी नाइस एंड इजी टू मी, ऐसे कैसे क्रॉस हो रहा है, ये क्या चक्कर है? सो बीइंग डिमोनियक, ही डिड नॉट हैव पेशेंस. ही वांटेड टू सी व्हाट इज इनसाइड दिस थिंग, इसमें क्या है. और उसने क्या किया, उसको डाउट हो गया. उसने क्या किया, उसने खोल के देख लिया, उसमें लिखा था राम. ठीक है, तो उसने भगवान राम के नाम पे एक तरह से डाउट हो गया, and the same time he sank. So this story is said to show us कि अगर हमें डाउट है कि भगवान का नाम हमें तार सकता है, तो फिर हम फेथफुली भगवान का नाम ले नहीं पाएंगे. हमें ये पता होना चाहिए, एक नाम लेने से, शुद्ध नाम लेने से तो पता नहीं कितने ही पाप और कितने ही कर्म कट जाते हैं, और भगवान का प्रेम आ जाता है. और अगर अपराध से भी नाम ले रहे हैं तो भी बहुत पोटेंट होता है, तो भी बहुत पाप करते हैं, कर्म करते हैं. सो वी शुड ऑलवेज हैव कंप्लीट फेथ इन लॉर्ड्स नेम्स. So this is what Krishna is saying, that aham tvam sarva papebhyo. अब जैसे कि पाप का और भी बहुत से एग्जांपल्स आते हैं कि जिसमें डिवोटी को लगा, चलो हम डीमंस की बात नहीं करते, हम डिवोटीज की बात करते हैं, जब लगता है कि हमसे कुछ पाप हो गया और उन्होंने भगवान की शरण ली. ऐसा कोई एग्जाम्पल दे सकता है स्क्रिप्चर्स में से कि जब उनको लगा कि उनसे कुछ पाप या अपराध हो गया और उन्होंने भगवान की शरण ली, जब उनको लगा हमसे बहुत कुछ गलत हो गया, सिंफुल हो गया है या ऑफेंस हो गया है? ऐसे कोई एग्जाम्पल आता है स्क्रिप्चर्स में? हु कैन टेल? अभी हमने ब्रह्म विमोहन लीला की बात की, राइट? क्या हुआ था ब्रह्मा जी से? अपराध हुआ ना अगेंस्ट ऑल द ब्रजवासीज, एंड भगवत अपराध भी हुआ कृष्णा के अगेंस्ट. एंड इंद्रा का एग्जाम्पल, इंद्रा से क्या हुआ? अपराध हुआ अगेंस्ट ऑल द ब्रजवासीज एंड अगेंस्ट भगवान,
है ना। और तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान को और प्रेयर्स ऑफर की, कंप्लीट सरेंडर शो किया कि हमें प्लीज, आपको ब्रह्मा जी की प्रेयर्स पढ़नी चाहिए आफ्टर ब्रह्म विमोहन लीला। सिमिलरली इंदिरा ने जो प्रेयर्स ऑफर की आफ्टर, क्या थी वो प्रेयर्स, दे शो कि कंप्लीटली भगवान को बोल रहे हैं कि प्लीज हमें अपनी शरण में ले लो, हम तो बहुत पापी हैं, हमें तो कुछ नहीं पता। So in this way we should take shelter of Krishna. Brahma ji showed, Indra showed. Who else? Any other devotees come to mind जिन्होंने भगवान का पूरा शरण लिया when there was some offense or some sin that they committed? माता जी इंद्र। हाँ, इंदिरा का तो मैंने अभी बोला, इंदिरा बोला और ब्रह्मा जी बोला हमने। और कोई स्क्रिप्चर्स में से कोई? भागवतम is full of examples of such devotees. Any 2-3 more examples come to mind when devotees thought that they committed some offense. I wanted to finish this verse, so let's keep going. How about Parikshit Maharaj? Parikshit Maharaj को लगा कि मुझसे अपराध हो गया against the sage, है ना, और मुझे जो punishment मिली है that is apt, so he accepted that punishment with grace, and in the last few days he did not try to reverse that situation. He did not try to retaliate. He tolerated it and he completely absorbed himself in Srimad Bhagavatam. So उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से last के 7 days में श्रीमद् भागवतम सुनी। तो परीक्षित महाराज को भी ऐसा लगा कि मुझसे कुछ ऑफेंस या पाप हो गया है ना। और कौन, और किसी ने ऐसा कुछ भगवत अपराध किया या डिवोटी के अगेंस्ट अपराध किया? हाउ अबाउट बलि महाराज? बलि महाराज से भी एक तरह से वामन देव के अगेंस्ट अपराध हुआ, राइट। लेकिन जब उनको पता चला कि ये तो भगवान है, उन्होंने क्या किया, तीसरा पांव कहाँ रखो, मेरे सर पे। तो कंप्लीट बलि महाराज इज ग्लोरिफाइड फॉर आत्मनिवेदनम, जो लास्ट स्टेप होता है ऑफ नवदा भक्ति, द 9 limbs of devotional service. He did आत्मनिवेदनम। Durvasa Muni से अपराध हुआ against Amrish Maharaj. So ultimately he was also guided to take shelter of Amrish Maharaj only. कि आप Amrish Maharaj से जाके apologize करो. So he also took shelter of a devotee. So in this way, and we may, there may be some sins, there may be some offenses that we commit, but we should always take shelter of God. He says, I will free you of all those offenses and all those sins. ठीक है। दूसरा वर्ड जो था इसमें वो था फियर, माँ शुचा। ठीक है, तो भगवान हमारे सारे डर भी दूर करते हैं। ठीक है, हमारे सारे डर दूर करते हैं। जैसे कि अगेन परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल आता है, प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल आता है ना। देयर सिचुएशन वाज वेरी फियरफुल, but so to be in association of Hiranyakashipu and is constantly tormenting you is a very fearful situation. But Prahlad Maharaj stayed completely fearless through that because he was constantly and very intensely connected to Krishna. So fear उनको छू नहीं सकता था। तो इसलिए जो भी भगवान से कनेक्टेड है उसको क्या इंस्ट्रक्शन है, माँ शुचा, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी इस दुनिया में प्रॉब्लम्स आए, एक्सटर्नल सिचुएशंस आए, कंडीशंस आए, रिवर्सल्स आए, कुछ भी डरने की, और अपने अंदर की जो चीजें हैं, इंटरनल डीमंस हैं, अनर्थास हैं, सिंफुल प्रोपेंसिटीज हैं, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। कृष्णा सब हैंडल कर लेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज माम एकम शरणम व्रज। उत्तरा का एग्जाम्पल आता है कि शी सॉ ब्रह्मास्त्र अटैकिंग हर वूम, है ना, उसकी वूम में अटैक करने वाले थे टू किल परीक्षित, लिटिल परीक्षित, दैट वाज, शी वाज प्रेग्नेंट विद परीक्षित महाराज एंड ब्रह्मास्त्र वाज गोइंग टू किल परीक्षित, जो अश्वत्थामा ने फेंका था। दिस स्टोरी कम्स इन फर्स्ट कैंटो। So Uttara took shelter of Krishna. So whenever you take shelter of Krishna, all fearlessness is guaranteed. भगवान ने इसका वचन दिया है, भगवान ने वाव ली है, भगवान ने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें fearless कर दूंगा। अर्जुना was so fearful in the start of Bhagavad Gita कि ये सब लोग मर जाएंगे, हमें पाप लगेगा, हमें he was so afraid of the sins and so afraid of the reactions that they will get by killing all these people. स्त्रियां जो हैं वो भ्रष्ट हो जाएंगी और हमारी सारी जनरेशन डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, हमारे सारे ट्रेडिशंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इतने लोगों को मारने का पाप लगेगा, इतने बड़े बड़े आचार्यस को, हमारे पितामह को, हमारे ग्रैंडफादर, फादर्स और जैसे लोगों को मारने का पाप लगेगा। तो कृष्णा ने क्या कहा कि अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ठीक है ना। तो इसलिए अर्जुना को भी उन्होंने ऐसे fearlessness दी। गजेंद्र वाज इन सच अ प्रिकेरियस सिचुएशन, उसको तो fearful सिचुएशन थी बिकॉज इट वाज अटैक ऑन हिज बॉडी, ही वाज गोइंग टू डाई, है ना, एट द हैंड्स ऑफ दैट क्रोकोडाइल। तो उसने क्या किया, उसने बस भगवान को एक प्रेयर्स ऑफर की, जिसको पिछले जन्म की प्रेयर्स याद थी। इसलिए हमारी स्पिरिचुअल प्रोसेसेस, स्पिरिचुअल प्रेयर्स, हमारी ये वर्सेस इतनी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सब चीजें हमें, ये संस्कार हैं जो हमें अगले जन्म में भी याद रहेंगे। भगवान ना करे अगर हमें अगला जन्म मिलता है
So I hope we don't get the next birth. I hope this lifetime is it. I hope that's the goal of every devotee sitting here, that this is it. May we never take birth again. This is the last life. लेकिन अगर बर्थ मिलता है तो गजेंद्र की तरह, जैसे उनको अपने प्रीवियस लाइफ टाइम की प्रेयर्स याद आ गई थी, एंड ही हैड दैट संस्कारा इन हिम, दैट्स द स्पिरिचुअल क्रेडिट विल नेवर गेट डिस्ट्रॉयड. तो अगर ये संस्कार रहेंगे, ये वर्सेस, ये प्रेयर्स हमारे दिमाग में रही, तो अगर हमें कभी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, दिस इज व्हाट वी कैन ऑफर टू द लॉर्ड एंड टेक हिज शेल्टर. तो शेल्टर कई तरीके से लिया जा सकता है, भगवान का नाम लेके, भगवान की स्तुति गा के, भगवान की प्रेयर्स गा के, डिवोटीज का शेल्टर लेके, ग्रंथों का सहारा लेके. भगवान ने हमें कितने तरीकों से अपना शेल्टर लेने के लिए अपॉर्चुनिटीज दी हैं. All we have to do is to turn towards him in a difficult situation, and he says, I will take your cross. So then, फिर ये मेरा लास्ट पॉइंट है इस टॉक का. तो फिर हमें जो फियर है एक्चुअली, जो कृष्णा जिस फियर की बात करें, when he says मोक्षा श्यामी माँ शुचा, कृष्णा बोल रहे हैं प्रॉब्लम क्या है, वी आर वेरी अफ्रेड टू लेट गो. ये जो कृष्णा बोल रहे हैं ना, लेट गो ऑफ योर बिलीफ सिस्टम्स, लेट गो ऑफ योर सो कॉल्ड पर्पसेस, लेट गो ऑफ ऑल दीज मेड अप धर्मास, है ना, सर्व धर्मान परित्यजा, इनको छोड़ दो. माँ शुचा, डरो मत. वी आर वेरी स्केर्ड टू लेट गो. हम ये सरेंडर करने में बहुत अफ्रेड फील करते हैं, बहुत स्केर्ड फील करते हैं. आपने वो एक्सरसाइज देखी है, आपने वो कभी देखा होगा आप लोगों ने कि स्टेज पे जाके ये एक एक्सरसाइज की जाती है, जो पर्सन होता है, दे टर्न अराउंड एंड देन दे फॉल बैक इनटू द क्राउड. ऐसा देखा, ऐसा दे फॉल बैक इनटू द क्राउड एंड द क्राउड लिफ्ट्स देम अप, है ना. उसके लिए बहुत ज्यादा you have to let go of your fear. You really have to let go because you don't know if the other person will catch you, because the crowd will catch you or not, और आप सीधा नीचे गिरो, है ना. ये वाली एक्सरसाइज अक्सर की जाती है टू शो योर कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट फेथ इन पीपल, एंड कंप्लीट लाइक आई एम लेटिंग गो ऑफ ऑल माय फियर्स. ये प्रैक्टिस ये शो करती है, अक्सर लोग करते हैं अपने मूवीज में या इसमें देखा होगा, लोग स्टेज पे जाके दे टर्न अराउंड एंड देन दे लेट गो एंड द क्राउड कैचेस देम, है ना. ये शो करती है कि मैं अपने सारे डरों से आई एम लेटिंग गो ऑफ ऑल माय फियर्स, है ना. इसी तरीके से हमें ये याद रखना है कि कृष्ण, हमें कुछ जनरल क्राउड नहीं कैच करे, हमें कृष्णा खड़े हैं कैच करने को. ही इज गोइंग टू कैच अस, सो वी कैन टर्न एंड लेट गो एंड ही विल कैच अस. So let go and be reassured. This man who's completely powerful, our best well-wisher, complete knower, does not make any errors. उनके हाथ से गिरेंगे नहीं, छोड़ोगे तो आप गिरोगे नहीं. He does not make any error. So this person has got you. Such a powerful person has got your back. What do you have to worry about? But we are still scared to let go. We are still afraid to let go. तो हमें ये फियर को कृष्णा छोड़ने को कह रहे हैं. Do not be afraid. Let go. I will catch you. He's saying, let go. I'll hold you. So इसलिए we should not hold back. But still people are not able to let go of their baggage. जो सारे दिमाग में भूसा भरा है, they're not able to let go of it. They're not able to let go of the baggage. We are so attached to this body and so many things that the world has taught us. We have all attachment to this world and no attachment to Krishna. We have forgotten his power, his love for us, so that his knowledge of us, his intelligence in protecting us. That is why we rely on our own means, our own intelligence completely, because we have forgotten Krishna. तो हम जितना कृष्णा को से अटैच करेंगे और इस दुनिया से डिटैच करेंगे, हमारा ये जो डर है टू लेट गो वो जाता जाएगा, फेथ आता रहेगा, एंड दिस फियर, दिस हम जो स्केयर्ड फील करते हैं टू लेट गो, वो चला जाएगा. ठीक है. So we should let go and let Krishna catch us, let Krishna lift us up. He will lift us up like that. So this is all I wanted to share. So when he's saying Ma Shucha, he's saying let go, don't be afraid. Okay. Transcend above your fear, your anxieties. Okay. ये बोलते हैं Krishna. He says, I got you if you will let me. So we just have to ask Krishna, please catch me, and if you let him catch you, he will catch you. Okay, that's all. That's all I have to share. Anybody wants to share anything? Like a beautiful verse, like definitely this is something, I think everything, whatever a devotee needs to know, I think it's in this verse. Everything there. So like how I feel about this is like, we need to remember 4 things, pretty much like the 3 qualities of Krishna, which you talked about. He's a complete knower, his unconditional love towards us, and he cannot make any errors. And then the 4th one I would just add to this is let go. If you just remember these 4 things,
this is the nutshell of everything. So I think just remembering these 4 things would, anytime we have something, any doubt in our mind, or we are struggling with anything, whether it's work, relationship with anybody, or anything, any hardship in life, if we can just remember these 4 things, I think that should be it. So I think it's a beautiful verse, beautiful verse. It's like, this is the first time I've been able to um, memorize this verse without much effort, because of its how the meaning it is. Like, I was just looking at the meaning, how the words had and I could memorize it. So because it's just so beautiful. So that's what my understanding about this verse is. Wonderful, Mother. You summarized everything, and I can see that the verse is connected in your heart. I can see it. And verses, like you said, it's पूरा हिंदी में ही है, थोड़ा हिंदी के words ही हैं, so it's not very difficult to memorize this. और हमें ये प्रॉमिस है कृष्णा का कि माँ शुचा, डू नॉट फियर, आई गॉट योर बैक, डू नॉट फियर. इतना पावरफुल व्यक्ति आपको ये बोल रहा है कि आई गॉट योर बैक, तो आपको किस बात का डर है ना. तो इसलिए वी शुड रिपीट दिस इंस्ट्रक्शन, दिस प्रॉमिस. इंस्ट्रक्शन भी है, प्रॉमिस भी है. इंस्ट्रक्शन ये है कि मेरी शरण में ही आओ सिर्फ, और प्रॉमिस ये है कि आई गॉट योर बैक. तो इतना पावरफुल बंदा आपको ये प्रॉमिस दे रहा है, तो उसकी बात को मान के फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन. ठीक है. एक मुझे ना एनालॉजी और याद आ रही थी लेट गो से. लेट गो जो मैंने किया अपनी लाइफ में, विच इज अ वेरी लिबरेटिंग, वेरी वेरी रिलैक्सिंग, वेरी नाइस फीलिंग इट इज टू व्हेन आई स्काई डाइव्ड. आप में से किसी ने स्काई डाइविंग किया अगर, तो जब वो जो एक सेकंड होता है जिसमें आपको जंप करना है एयरप्लेन में से, है ना, वो सबसे हार्ड होता है. बट वंस यू लेट गो, है ना, एक बार आपने छोड़ दिया, आप गिरे, एक बार तो आप नीचे जाओगे, आपको लगेगा वो नो, मे बी आई शुडंट हैव लेट गो, है ना. जैसे ब्रजवासी इसको लगा कि शायद हमें नहीं माननी चाहिए थी बात कृष्णा की, तो हम नीचे जा रहे थे. लेकिन फिर वो जब पैराशूट खुलेगा तो फिर एकदम से आप ऊपर जाओगे, एंड देन ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, एंड यू आर सोअरिंग इन द स्काई, एंड देयर इज, you have wings, suddenly you're flying like a bird, and there is such a beautiful landscapes you can see, and wind in your face, and enjoy, you just complete bliss, है ना. लेकिन एक बार तो लगा कि गिरे, है ना. लेकिन वो जो डिसीजन था जिसमें आप यू लेट गो एंड जस्ट सरेंडर टू कृष्णा, जस्ट लेट हिम कैच यू, है ना, दैट मोमेंट विल फाइनली अपलिफ्ट यू. अल्टीमेटली जो वो ब्लेस फील होगा, जो कंप्लीट नॉलेज, एंड कितनी रिलैक्सिंग बात है. आपको कुछ सोचना ही नहीं, आपको कुछ करना ही नहीं है, किसी और ने आपका सारा बाहर ले लिया, उसको उनको ही करना है. आप देख लो, वही हमने तो आपके ऊपर छोड़ दिया. तो ये सिर्फ डिवोटीज ही कर सकते हैं, ये कर्मी लोग नहीं कर सकते, बिकॉज कृष्णा विल नॉट इम्पोज हिमसेल्फ ऑन पीपल दैट हैव नॉट टेकन हिज शेल्टर. तो वो तो अपने कर्म के हाथों थपेड़े खाते रहेंगे. दे आर गिवन टू देयर ओन कर्मास. कभी जो जितना लिखा है उतना उनको मिलेगा. लेकिन डिवोटीज के केस में कृष्णा विल इंटरफेयर. डिवोटीज के, क्योंकि वो कृष्णा का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, सो कृष्णा हैज टू फॉलो हिज प्रॉमिस. भाई आपने ये इंस्ट्रक्शन दी थी, हम वो फॉलो कर रहे हैं, हम आपके शेल्टर में आ गए, अब आपने प्रॉमिस किया था, अब आप देख लो, है ना. तो वो देख रहे हैं, उनको देखना है. पर वो नॉन डिवोटी जिसने उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की, जिसने उनकी शरण नहीं ली, जो अपने ही दिमाग पे, अपने ही भरोसे, अपनी ओपिनियंस, अपने ही उसमें लगा हुआ है, फिर वो कृष्ण, वो अपने इस दुनिया के लॉस के हिसाब से उसकी लाइफ चलेगी, है ना. जितना अप एंड डाउन उसकी लाइफ में लिखा है वो चलेगा. लेकिन कृष्णा विल इंटरफेयर इन द लाइफ ऑफ डिवोटीज. So for them he will do unbelievable things. जैसे कि हम देखते हैं in case of प्रहलाद महाराज, he will do unbelievable thing जो आज तक गाई जाती है, जिसकी स्तुतियां की वो कैसे खंबा तोड़ के बाहर निकले. He'll break the columns and manifest out of the columns for you. He will make the Sudarshan Chakra go around chasing Durvasa Muni through all the planets. So many things he will do for you, but all you have to do is Mamikam Sharanam Braja, and then Moksha Shami Mashucha Hoga. Okay, that's where we will stop. Any other realizations, thoughts, corrections? Anybody wants to share? Please share. Nirbhay Prabhu, if you were able to hear, please share. Or Poonam Mataji, Rekha Mataji. हरे कृष्णा माता जी. माता जी, आज का क्लास बहुत अच्छा था. ये वो, इस क्लास में वो सब था जो हम लोगों को जरूरत है जिस चीज की, क्योंकि हम लोग बार बार बैड सिचुएशन आने पर डर जाते हैं, घर में कोई प्रॉब्लम या कुछ वैसी सिचुएशन आती है तो हम लोग घबरा जाते हैं, हम भगवान पर उतना विश्वास, उतना फेथ नहीं रख पाते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वाले क्लास को मैं बार बार सुनना चाहूंगी, ताकि ये चीज मेरे दिमाग में अच्छे से घुस जाए, अच्छे से बैठ जाए कि भगवान हमारा प्रेजेंट, हमारा पास्ट, हमारा फ्यूचर सब जानते हैं, और हमारी जो सिचुएशन आज की है प्रेजेंट की, वो हमारे अच्छे के लिए ही है.
तो कृष्णा हमारा बेस्ट फ्रेंड है। तो माता जी मैं इस क्लास को बार बार सुनकर और अच्छे से इस चीज को अपने अंदर रखना चाहती हूँ, बैठाना चाहती हूँ। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। वेरी बोल, थैंक यू माता जी, आप इतनी इंटेंसली सिंसियरली सुन रहे थे। that is why you get something out of this. Yes, Rekha माता जी। मैंने ये रियलाइज किया कि इस क्लास से या आपसे भी बात करके कि कभी कभी हमारा इंटेंशन हम कुछ बोल देते लेकिन हमारा इंटेंशन रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन अगर हम कृष्णा को सेंटर में करते हैं तो वो जो फियर है ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होता जाता है। सो आई कीप इन माइंड कि आई ऑलवेज कीप कृष्णा इन द सेंटर, नॉट माई सेल्फ इन द सेंटर। आई रियली लव्ड इसमें भी है कि बी fearless. It's 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 really wonderful because it can help us in our bad times. यस माता जी, ये जो रिवर्सल्स वाला टॉपिक है, ये बड़ा टॉपिक है, ये भी कभी किसी दिन ले सकते हैं कि हाउ टू डील विद द रिवर्सल्स और एडवर्सिटीज और डिफिकल्टीज इन वंस लाइफ। इसके एग्जांपल्स भी हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में, जो पूनम माता जी अभी बता रहे थे कि कैसे डील करना चाहिए डिफिकल्टीज को, और हमें डिवोटीज से सीखना चाहिए कि कैसे हैंडल करते हैं डिफिकल्ट सिचुएशंस को। व्हाट रिवर्सल माता जी? रिवर्सल मीन्स? रिवर्सल मतलब डिफिकल्टीज, जैसे कोई विपदा आती है जब लाइफ में, जब कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो डिवोटीज कैसे उनको डील करते हैं, इसका भी एक कभी करेंगे सेपरेटली, विल टॉक अबाउट इट। But I think I'll stop here. We're exceeding the time. If you want, we can chant one round of Hare Krishna Mahamantra, but I'll stop the call. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna. Hare Krishna.